ہے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ ہے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ تم بھول نہ جاؤ ان کو، اس لیے سنو یہ کہانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ ہماری فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں بھی پیش ہے۔ ملک کی سالمیت اور وحدت کو برقرار رکھنے کے اپنے بنیادی کام کے علاوہ اندرون ملک لوگوں کو درپیش خطرات سے بچانے کے کام میں بھی ہمارے بہادر فوجی جوان آگے رہ کر لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں۔ بھارت میں رہنے والے ہر طبقے اور مختلف مذاہب سے وابستہ نوجوان فوج میں بھرتی ہو کر اپنے ملک اور یہاں کے عوام کی زندگیوں کا دفاع کرنے کا عظیم فریضہ انجام دیتے آئے ہیں۔ اپنا فرض انجام دینے کے دوران ہمارے بہادر فوجی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر انہیں ختم کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ کرگل جنگ کے دوران بھی ہمارے ان بہادر جوانوں نے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے عظیم قربانیاں پیش کی۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے دوران بھی ان جوانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہاں کے عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ دہشت گردوں کے خلاف ایسی ایک کارروائی کے دوران اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈب گاندربل کے سپاہی شبیر احمد نے دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران اپنی جان ملک کی سالمیت کے لیے نچھاور کر دی۔ شبیر احمد 1987 میں ڈب گاندربل کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی پرائمری تعلیم اگرچہ نزدیکی طور ایک مقامی سکول میں ہی حاصل کی، تاہم بعد میں شبیر احمد نے سینک سکول مانسبل میں داخلہ لیا اور وہاں سے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ ان کے دوستوں اور گھر والوں کے مطابق شبیر احمد کو بچپن سے ہی فوج میں شامل ہونے کا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ بلاخر 21 مارچ 2007 کو شبیر احمد فوج میں بھرتی ہوئے۔ 2 سال ریاست سے باہر تعینات رہنے کے بعد سال 2009 کے اوائل میں شبیر احمد کا پیرا ٹروپر ریجمنٹ کشمیر میں تعینات ہوا۔ اسی دوران کپواڑہ سیکٹر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی تیراندازی کی خبر ملی۔ فوج نے ایک دم کارروائی کر کے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ آپریشن میں شامل جوانوں میں پیرا ٹروپر شبیر احمد کو بھی بھیجا گیا۔ دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران 21 مارچ 2009 کو پیرا ٹروپر شبیر احمد شہید ہوئے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شبیر احمد بڑی بہادری سے دہشت گردوں کا تب تک مقابلہ کرتے رہے جب تک وہ شہید ہوئے۔ پیرا ٹروپر شہید شبیر احمد کو بعد از مرگ وششٹ سیوا میڈل عطا کیا گیا۔
शहीद शब्बीर अहमद के अहल खाना का कहना है, जो इंसान जहाद करेगा वो कभी मरता नहीं है। जहाद का ये मतलब नहीं है कि हम किसी को मतलब गैर मुस्लिम को या किसी और को जो है उसको कत्ल कर दें। ये जहाद ये नहीं है। जहाद एक्चुअली ये है कि हम अपने के लिए इस दुनिया में स्ट्रगल करें, अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल करें, अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल करें, अपने मुल्क को बचाएं। ये एक्चुअली जहाद का मतलब है। तो शुक्र है अल्लाह ताला की वो जहाद होते उसने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए जो है इस दुनिया से वो यहाँ इस दुनिया से चला गया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आजकल हमें बहुत लोग कश्मीर में ऑलमोस्ट हम बहुत फेमस हो गए हैं। वो तो शब्बीर की वजह से हो गए, वरना हमें कोई जानता नहीं था। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, उसने अपनी कंट्री के लिए अपना जज्बा जो है, अपनी कंट्री के लिए खून दे दिया, अपनी कंट्री के लिए जो है लड़ते लड़ते उसके लिए वो शहीद हो गया। तो इस वजह से पूरा कश्मीर हमें जानता है। तो उस अल्लाह ताला का शुक्र है कि कहते हैं ना कि इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर होता है। तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि इस दुनिया से हर एक को जाना है, चाहे कोई पहले ही जाता है, कोई बाद में जाता है, मगर जाना है। कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम यहाँ पे अल्लाह के लिए आए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमें लौट के जाना है। तो वो यहाँ से वो शहीद हो गए। तो शुक्र अल्लाह ताला का, इसने इज़्ज़त के साथ आज भी पूरा कश्मीर पूरा इंडिया उसको याद कर रहा है। तो उसने शहादत पाई है। सोन रहन सहन यही मतलब ये बस पे भरोस, मतलब तमिस मोन ख्याल तमिस वारिया, तो तमिस मतलब पता मतलब कर बस क्या हेल्प वेल्प हूँ ये, मगर अस किस्मत सूर, अस पता मतलब सोन बोय गन शहीद, तो मगर तमिस मोन वारिया ख्याल। सह हेके मेन जिंदगी मूजूब कह कर तमिस मे वाद थोमुत मे सत। उनका ये भी कहना है कि शब्बीर को बचपन से ही कुछ करने का शौक था। यही वजह है कि वो फौज में भर्ती होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करने में जुट गए। शहीद शब्बीर अहमद के दोस्तों और उस्तादों को भी उनकी शहादत पर नाज है। उनका कहना है कि शब्बीर बचपन से ही होनहार थे और उनमें कुछ करके दिखाने का शौक था। बिल्कुल, शब्बीर साहब जो जिस मकाम पे पहुँचे थे, वाकई जो लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लोगों को बात की इस बारे में इल्मियत ही नहीं थी कि शब्बीर साहब इस मकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान थे। तो इस मकाम पे पहुँचने के बाद बहुत से लोगों में जो जज्बा बढ़ गया है कि वो भी फ़ौज में अब आराम से जाना चाहते हैं, शौक़ से जाना चाहते हैं। जब उसको यहाँ पर लाया गया तो यहाँ के कुछ बुज़ुर्गों ने ये ख्वाहिश की कि काश हम भी ऐसी मौत मरते, यानी कि इसको कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि औरों को भी रश्क हो, मौत ऐसी हो कि दुनिया देर तक मातम करे। मरना तो सबको होता है, कोई आज मरता है, कोई कल मरता है, लेकिन सच्ची में ये बात ज़ेर आया है कि जब भी कोई मरता है तो हर कोई चाहता है कि मरने के बाद मेरा नाम बड़े तरीके से, आसान तरीके से लिया जाए। लेकिन शब्बीर साहब एक ऐसे होनहार नौजवान थे कि जिनका नाम आज भी हर एक ज़ुबान पर मौजूद है। और हमारे गांव में ये बहुत सा फ़ख्र है हमें कि इसने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए ये कुर्बानी अजीम दी। हाँ, मैं भी उन दिनों यहाँ स्टूडेंट था इसी स्कूल में। तो मैं पढ़ाई करता था 9th क्लास में, मेरा जूनियर था, 8th क्लास में पढ़ता था। लेकिन हम हमेशा देखते थे कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लेते थे। ही वॉज अ पैट्रियाटिक काइंड ऑफ पर्सन। और जो भी हम एक्टिविटीज़ करते थे, यहाँ पे कुछ गेम्स होते थे, कभी हम कोलैबोरेट करते थे इंडियन आर्मी के साथ, तो वो हमेशा रेडी रहता था। सबसे पहले वो फ्रंट लेता था, नहीं मैं ही खेल पाऊँगा। उसमें सबसे पहले से ही हमने देखा कि उसमें पैट्रियाटिक फीलिंग्स थी। और हम सारी बस्ती, यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल प्राउड करता है शब्बीर जो मार्टियर हुआ। वो बहुत ही ज़हीन और काबिल शख्स लड़का था। वो हर क्लास में लगभग अव्वल ही आता था और जो इसकी परसेंटेज होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। इसी बिना पर जब इसकी हमने परफॉर्मेंस देखी, वो जम्मू कश्मीर और जो साइंस स्कूल है मानसबल में, उसने वहाँ दाखिला लिया और उसने वो अपनी वहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। परफॉर्मेंस दिखाने के साथ साथ उसके जो तरीक़ाकार थे डब में, बाहर के इलाके में, उनके स्टाफ के, उनके क्लास में, उनने भी उसकी बहुत तारीफ़ें की। वो बहुत ही बड़ा ज़हीन था। कभी भी अगर गाँव में कोई भी मुश्किल आता था, इतनी कम उम्र में भी वो उसके साथ साथ हमारी मदद कर रहा था। मैं उसके उस्ताद के साथ साथ मैंने उसको पढ़ाया भी है और उसके साथ साथ मैं उसके घरेलू माहौल से भी वाक़िफ़ था।
काफ़ी गरीब भी बेचारा था। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं कि तो इज़्ज़त, उस टाइम इज़्ज़त मिलती है, नहीं हमारे फ्रेंड में से किसी ने कुछ ऐसा किया जो यहाँ किसी और ने नहीं किया कश्मीर में, कि हमारे दोस्त ने कुछ ऐसा किया, बहुत अच्छा लगता है। फौज ने पैराट्रूपर शहीद शब्बीर की मुल्क के तई खिदमात को देखते हुए डब गांधरबल में उनके नाम से मंसूब एक कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया। इसके अलावा घाड़ूरा गांधरबल में नौजवानों के लिए कायम किए गए स्टेडियम का नाम भी शहीद शब्बीर स्टेडियम रखा गया। शब्बीर साहब अत पे बड़ा खुश, ये गो कुर्बान अपने वतन के लिए, तो सान बचन चाहन गो अत जाए वातन पन्नस वतनस रैश करने खातर, तो अम सस नावस पे कम्युनिटी हॉल, आसान खानदर पानदर सह अतुत आसान शादी सह अतुत, बच्चे पढ़ान इस्लामी स्कूल, तो ब्रोन की बड़ा शब्बीर साहब की नाम पर हमें बहुत फ़ख्र है कि ये अपने इस मुल्क पर शहीद हो गया है और उसने हमारा नहीं सारे मुल्क का नाम रोशन किया है। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम शब्बीर साहब के गाँव के रहने वाले हैं, इसलिए हमें फ़ख्र है उसकी शहादत पर। उनकी कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। वादी के नौजवानों में शब्बीर अहमद की शहादत से एक नया जज्बा उभर आया और अब बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे नौजवानों के लिए शहीद शब्बीर मशाल राह बने। कश्मीरी नौजवानों में मुल्क की हिफाजत करने और इसकी वहदत व सालमियत को बरकरार रखने के जज्बे में इजाफा हुआ और शहीद शब्बीर के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किए हुए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें फ़ौज में जाने के अपना दिली जज्बा है, क्योंकि हमें फ़ौज में जाना, ये अपने मुल्क की रक्षा करना, ये हमें ज़ाती मामला है सर, कि हमारा जो ये मुल्क है ये हमेशा खुशहाल मुल्क बन जाए और इसमें हमेशा हमेशा पीस रही। हम भी यही मैसेज देंगे कि भाई जो भी कोई काम करना है तो अपने मुल्क अपने देश के लिए करना है। इसीलिए हम अपने दोस्तों और जो बागी साहिबान देखेंगे हमें, उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सके, चाहे किसी भी कोई डिपार्टमेंट क्या ना हो, उसमें हम अपने मुल्क की, अपने रियासत की, अपनी रियासत की शान बढ़ाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है, आर्मी भर्ती है, इसमें हम चाहते हैं कि हम भी देश की सेवा करें। यह हमारा हक बनता है कि जब हम भी देश की सेवा करेंगे तो यह हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आवर राइट, वी कैन डू इट। हम चाहते हैं कि हम इस फौजी भर्ती करें, अपने देश की भी सेवा करें और अपना नाम भी इसमें रोशन करें। हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, अपनी मुल्क की सेवा कर सकते हैं। जिस तरह वो और लोग अपने अपने फील्ड में अपना बेस्ट दे रहे हैं, हमें भी अपनी तरह से इस डिफेंस फील्ड में भी अपना अच्छा देना चाहिए। इस देश को कुछ वकार बढ़ाना चाहिए, इस देश को आगे लेना है, हर फील्ड में आगे ले जाना। आज तो साइंस का दौर है, हर डेवलप्ड बनना चाहिए। जब जिसको डेवलप बनना, इसका डिफेंस डिपार्टमेंट भी सुपर पावर बनना चाहिए। सर, आज हमें बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है कि आज हम आर्मी भर्ती में आए हैं। हम चाहते हैं कि हम सिलेक्ट हो और अपने देश के लिए कुछ कर बैठे। इंशाल्लाह जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर बैठूं, यहाँ तक कि अगर मेरी जान भी चला है तो मुझे फख्र होगा अपने आप पर कि मैंने अपने देश के लिए कुछ कर किया। पैराट्रूपर शहीद शब्बीर अहमद ने भारत के उन सपूतों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर लिया जिन्होंने वतन की आन बान और शान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहीद शब्बीर अहमद समेत ऐसे तमाम जानबाजों को भारतीय अवाम हमेशा याद रखेगा और उनकी मुल्क के तय खिदमत रायगा नहीं होगी।